Dear friends, today we are going to discuss about the YouTube monetization policy which is going to change from 15 July 2025. I am giving you the regulations which are being placed by YouTube, and there is a Hindi of this English version, so we'll try to understand. And what are these changes? Please listen carefully. YouTube has updated its monetization policy, specifically targeting mass produced and repetitive content within the YouTube Partner Program, that is YPP. These changes effective July 15 aim to ensure that creators are rewarded for original and authentic content. So in this, YouTube is saying that any content which is authentic, maybe having your own voice and your own face, and you are there in the video, it will be more appreciated and monetized. But if anything which is repetitive, and if you are taking something from any video and just with little minor changes you are just posting it same, YouTube will not appreciate it. तो हिंदी में समझते हैं, YouTube ने अपनी मुद्रीकरण दैट इज़ मोनेटाइजेशन नीति में बदलाव किया है. YouTube पार्टनर प्रोग्राम के अंतर्गत बड़े पैमाने पर निर्मित और बार बार दोहराए जाने वाले कंटेंट को विशेष रूप से लक्षित किया है. 15 जुलाई 2025 से प्रभावी इन बदलावों का उद्देश्य सुनिश्चित करना है कि क्रिएटर्स को उनके मूल और प्रमाणिक कंटेंट के लिए पुरस्कृत किया जाए. कोई भी काम, जो कोई भी यूट्यूब आप बना रहे हो वीडियो जिसमें आप का अपना कंटेंट है, उसको कोई रिपीटिशन या कहीं से लिया हुआ या किसी का कॉपी पेस्ट कर दिया, उस चीज़ को यूट्यूब मोनेटाइज नहीं करेगा. तो ये आप इसको एक बार पढ़ भी सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी पॉलिसीज़ गूगल पे हर जगह आपको मिल जाएगी और प्रॉपर उसका एक्सप्लेनेशन भी मिल जाएगा. अब मैं आपको इसके जो फोकस है वो बता रही हूँ. फोकस ऑन ऑथेंटिसिटी, द अपडेट गाइडलाइंस emphasize importance of original and authentic content. Channels that rely heavily on automated tools, reused content with minimal transformation or lack genuine creator input may faces demonetization. So mostly what people do, they generally do automated tools. I mean, there are a number of tools available on YouTube. Even there are websites, they freely help you to make a content and modify it. So that is automated tools. And reused content, somebody has uploaded a video and you use it in your own video. Then minimal transformation, just copy paste, or anything which is lack genuine creativity. For example, right now, even if you see when I'm making this video, I have done some authentic work. For example, I have taken these guidelines, I tried to did Hindi English translation, and then I'm speaking in my own voice. So it shows that the creator is involved in the video. But if you just take something, copy and then paste it with a minimal change, maybe some voice notice change, or somewhere in between very minor cut you have put, some minor editing has done, so such kind of videos will not be monetized after 15 July 2024. प्रामाणिकता पर ध्यान दें. दिशा निर्देश मूल और प्रमाणिक सामग्री के महत्व पर जोर देते हैं. ऐसे चैनल जो स्वचालित उपकरणों पर अत्यधिक निर्भर है, न्यूनतम परिवर्तन के साथ सामग्री का पुनः उपयोग करते हैं, या वास्तविक रचनाकारों के योगदान का अभाव रखते हैं, उन्हें डीमोनेटाइजेशन का सामना करना पड़ेगा. ऐसा कोई चैनल है जो बार बार यूज्ड कंटेंट को डाल देते हैं या माइनर चेंजेस करके डाल देते हैं, या कोई टाइटल बदल देंगे, या बहुत बार उन्हीं वीडियोस को अलग अलग टाइटल से डाल देंगे, तो इस तरह का, क्योंकि YouTube के पास इनके इतने हाई सॉफ्टवेयर होते हैं कि ये तुरंत सभी चीज़ों को पहचान लेते हैं, और जो रूल रेगुलेशन है उनको फॉलो करना पड़ता है, नहीं तो आपका चैनल डीमोनेटाइज हो जाएगा. अब ये है अगला पॉइंट, स्ट्रिक्ट रिव्यू ऑफ रिपीटेटिव कंटेंट. वीडियोस दैट आर मास प्रोड्यूस यूजिंग टेम्पलेट्स
or are repetitive without adding significant educational or entertainment value will be scrutinized more closely. This includes slideshows with minimal narrator, compiled clips without insightful commentary, and AI generated content lacking a human touch. So actually YouTube also allow you to use AI, but that should be a human touch. It's not like you simply have taken you have just given a note or an instruction and the AI has generated video, and there is not your voice, nothing is there. You have taken voice also from AI, the speaker also from AI, the editing also from AI, and everything is just it's tools, everything is being done by tools. So that will not be appreciated. दोहरावली वाली सामग्री की कड़ी समीक्षा ऐसे वीडियो जो टेम्पलेट का उपयोग करके बड़े पैमाने पर बनाए जाते हैं, जिनमें कोई खास शैक्षिक या मनोरंजन संबंधी मूल्य नहीं जोड़ा जाता, उनकी अधिक बारीकी से जांच की जाएगी। इसमें न्यूनतम वर्णन वाले स्लाइड शो, बिना ग्रहण टिप्पणी वाले संकलित क्लिप और मानवीय स्पर्श से रहित AI जनित सामग्री शामिल है। मैं एक बात और कहना चाहूँगी यहाँ पे, मोस्टली आप अगर देखेंगे बड़े बड़े क्रिएटर्स भी हैं, तो वो जब पढ़ते हैं तो बहुत सारे शब्द भी गलत बोलते हैं। जैसे सब्सक्राइब होता है, उसको सब्सक्राइब करते रहते हैं। फिर बहुत सारे हैं ऐसे जो काफ़ी पॉपुलर हैं, जिनके मिलियंस में व्यू आते हैं। या आप जब पढ़ रहे हैं तो गलत शब्द पढ़ रहे हैं, अंग्रेज़ी ठीक से नहीं बोल रहे हैं, हिंदी भी गलत पढ़ रहे हैं। तो मुझे लगता है जब आप इतने ऊंचे लेवल पे काम कर रहे हैं तो थोड़ा कम से कम मिनिमम एक रीडिंग और स्पीकिंग पे थोड़ा बहुत तो फोकस करना ही चाहिए। जब आप पढ़ रहे हैं तो कम से कम सब्सक्राइब है तो सब्सक्राइब पढ़िए। सब्सक्राइब क्या होता है? बहुत सारे क्रिएटर हैं जो सब्सक्राइब को भी ठीक से नहीं बोलते हैं। तो मुझे लगता है जब आप इतने ऊंचे लेवल पे पैसा बना रहे हैं तो थोड़ा बहुत तो इम्प्रूव करना ही चाहिए। तो अगला पॉइंट है हमारा क्लैरिफिकेशन नॉट अ बैन ऑन reaction and compilation content. A reaction videos, compilations and clip channels are not inherently banned according to search engine journal. इसको आप सर्च कर सकते हैं। However, creators must add significant original commentary, modifications or educational entertainment value to the reused content to remain eligible for monetization. So, it's a clarification, not a ban. If you are doing this reaction video, reaction means something has happened and then you react. For example, there is a trend going on in X and then you make a video on reacting it. Suppose somebody has commented something, somebody has posted something and you react. So these kind of videos will not be banned. But anything which is out of human touch will be demonetized. So it is a clarification, not a ban on reaction compilation content. Reaction videos, compilations and clip channels are not inherently banned, and this you can read here according to search engine journal. However, creators must add significant original commentary, modifications or education or and entertainment value to the reused content to remain eligible for monetization. और इसी का हिंदी है प्रतिक्रिया या संकलन सामग्री। संकलन सामग्री मतलब बहुत सारा कंपाइल करके आपने फिर से उसको रीयूज़ किया। प्रतिक्रिया, आप रिएक्शन दे रहे हैं किसी भी वीडियो का, पर स्पष्टीकरण प्रतिबंध नहीं है। ऐसे वीडियोस पे बैन नहीं लग रहा, लेकिन उसके लिए सफाई दी गई है यूट्यूब से। सर्च इंजन जर्नल के अनुसार प्रतिक्रिया वीडियोस संकलन और क्लिप चैनल स्वाभाविक रूप से प्रतिबंधित नहीं है। हालांकि मोनेटाइजेशन के योग्य बने रहने के लिए रचनाकारों को पुनः उपयोग की गई सामग्री में महत्वपूर्ण मौलिक टिप्पणी, संशोधन या शैक्षणिक और मनोरंजन संबंधी मूल्य जोड़ना होगा। मतलब कोई भी आप रिएक्ट भी कर रहे हैं या आप बहुत सारे किसी के वीडियोस का कलेक्शन करके आप डाल रहे हैं, तो कम से कम पर्सनल टच उसमें दीजिए। आपकी आवाज़ हो या आपने कोई टिप्पणी की हो या आपने कुछ उसमें चेंजेस किए हैं या आपने उसमें कोई एजुकेशनल एस्पेक्ट डाला या एंटरटेनमेंट आपने ऐड किया, तो ये सब आपका तभी मोनेटाइज होगा। AI uses allowed with transformation. AI tools can be used for assistance in content creation, but fully automated content lacking human transformation, commentary, or unique insights may be demonetized. So when you are using AI, there are number of tools. AI tools are there, and these AI tools could assist you. But when you are
uploading a video, before that it must be having a human transmission, commentary or unique insight maybe, that will be monetized. If it is not there, then it will be demonetized. So completely depending on AI. You have just instructed AI to write a page, then you just instruct any video creator, AI video creator to create a video. So the content is created by AI, the video is being created by AI, and you simply upload it. If it is not with your personal commentary, human transformation और your unique insight, then it will be demonetized. So रूपांतरण के साथ AI के उपयोग की अनुमति. AI उपकरणों का उपयोग सामग्री निर्माण में सहायता के लिए किया जा सकता है, लेकिन मानवीय रूपांतरण, टिप्पणी या अद्वितीय अंतर्दृष्टि, मतलब आपका अपना यूनिक पर्सपेक्टिव से सहित वही उसी का मोनेटाइज होगा, नहीं तो ऐसे चैनल को डीमोनेटाइज कर देंगे. नो चेंज इन एलिजिबिलिटी थ्रेशोल्ड. द मिनिमम रिक्वायरमेंट फॉर ज्वाइनिंग यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम इज़ 1000 सब्सक्राइबर एंड 4000 वॉच आवर्स. और अगर आप शॉर्ट्स बना रहे तो 10 मिलियन शॉर्ट व्यूज, दैट इज़ 1 करोड़ शॉर्ट व्यूज, रिमेन अनचेंज्ड. However, even if these thresholds are met, channels producing authentic content may not be approved or may lose monetization privilege. So, channels producing inauthentic content, and if with completely based on AI, no human touch, no personal commentary, no special or a unique perspective if you are able to give, then it will be demonetized. So, पात्रता की सीमा में कोई बदलाव नहीं है, आपको वही 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटे आपको देना. और अगर आपको शॉर्ट्स बना रहे तो 1 करोड़ व्यू शॉर्ट पे होना चाहिए, तो वो चेंज नहीं हुआ है. और इसमें हालांकि इन सीमाओं को पूरी करने पर अप्रमाणिक सामग्री बनाने वाले चैनलों को अनुमति नहीं दी जा सकती है या मुद्रीकरण, मोनेटाइजेशन विशेषाधिकार खो सकते हैं. तो हालांकि ये जो है ये तो बिल्कुल भी प्रॉपर है ही, इनमें कोई चेंजेस नहीं है. 1000 सब्सक्राइबर और 4000 वॉच आवर्स. अगर शॉर्ट्स हैं तो 1 करोड़ शॉर्ट व्यू, एक कोई भी आपके वीडियो पे 1 करोड़ शॉर्ट व्यू होने चाहिए, व्यूज़ होने चाहिए. और अगर वो अप्रमाणिक है, ऐसी कोई भी inauthentic material is being used, that will be demonetized. So please read it again carefully. In essence, YouTube is tightening its policies to promote more valuable and authentic content ecosystem, rewarding creators who genuinely engage their audience with original and well-developed content. Creators are encouraged to review their content strategies and prioritize originality, transmission, and viewer value to ensure continued monetization eligibility. So anything, matlab, primarily again, that if it is not appearing to be authentic with a human touch, your own creativity, your own opinion, then only you could sustain. And mostly copy paste material, you're just looking at the trend and then reposting video and reactions videos. So this will be demonetized. So संक्षेप में YouTube एक अधिक मूल्यवान और प्रमाणिक सामग्री पारिस्थितिक तंत्र को बढ़ावा देने के लिए नीतियों को सख्त कर रहा है और उन रचनाकारों को पुरस्कृत कर रहा है जो अपने दर्शकों को मौलिक और अच्छी तरह से विकसित सामग्री के साथ वास्तव में जोड़ते हैं. रचनाकारों को की अपनी सामग्री रणनीति की समीक्षा करने और मौलिक परिवर्तन और दर्शक मूल्य को प्रामाणिकता के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है. अब मेरा चैनल है जिसका नाम है डॉक्टर अंजू गुरावा. ये हमारा चैनल है, ये देखिए. अब इस चैनल में हमने, ये मेरा चैनल है, अभी मोनेटाइज नहीं हुआ है, लेकिन मैं जनरली इंग्लिश, दिल्ली यूनिवर्सिटी के MA इंग्लिश के स्टूडेंट्स के लिए मैं वीडियो बनाती हूँ. ये देखिए, दिल्ली यूनिवर्सिटी MA इंग्लिश सिलेबस. अब इसमें हमने कभी भी कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं डाली जो कि मतलब एक तो कोई भी वीडियो ऐसा नहीं मिलेगा आपको जो रिएक्शन वीडियो है या कहीं से अपलोड किया है. सारे वीडियो 2000 से ज़्यादा वीडियो हैं इसमें. और आप देखेंगे कि सारा ये सिलेबस है जो MA में हम पढ़ाते हैं. तो ये देखिए, जैसे गुलामगिरी, एलिज़ाबेथ बिशप,
जो भी है सारा का सारा टेक्स्ट मटेरियल है। और हर एक वीडियो आपको कम से कम कुछ वीडियो आपको 1-1.5 घंटे से ज़्यादा मिलेंगे। और मैं आपको बताती हूँ जैसे कि क्या हमने इसमें डाला है। मैं आपको कुछ वीडियोस बताती हूँ। देखिए जैसे ये टेक्स्ट है, ये वाला मैं टेक्स्ट बताती हूँ, एलिजाबेथ बिशप। आप इसमें देखिए, ये मेरा चैनल है, तो आप इसमें देखिए कि मैं ये टेक्स्ट पढ़ा रही हूँ। तो ये पूरा का पूरा एक बहुत ही ऑथेंटिक वीडियो है जिसमें हम टेक्स्ट पढ़ा रहे हैं। और ये पूरी तरह से मेरा अपना कंटेंट है जो मैं सिलेबस को पढ़ा रही हूँ। तो आप ये देखिए, इसमें मतलब आप देखेंगे कहीं पर भी आपको ये नहीं लगेगा कि ये कहीं से कॉपी पेस्ट मटेरियल है या हमने कहीं से ले लिया है। और ये पूरा एक चैप्टर का पार्ट डिस्कस किया था और बच्चों को बहुत अच्छी तरह से समझाया उसमें। तो ये मोस्टली मतलब सारे ही वीडियो हमारे ऑथेंटिक वीडियोस हैं और हमने बच्चों को बहुत अच्छी तरह समझाने की कोशिश की। जैसे ये है डिफेंस ऑफ पोइट्री, तो जो एमए करते हैं बच्चे इंग्लिश में उनको पता है, वो चैनल पढ़ते भी हैं। और आप ये देखिए, ये पूरा का पूरा आप देखेंगे कि किस तरह से हमने पूरा टेक्स्ट पढ़ा है। और इसमें कहीं भी पूरी चैनल में कोई मिक्सिंग नहीं है, कुछ नहीं है। मुझे कम से कम एक वीडियो बनाने में, अपलोड करने में 3 से 4 घंटे लग जाते हैं। पढ़ना तो अलग होता है, उससे पहले मैं बहुत पढ़ाई करती हूँ, उसके बाद पूरा एक थॉरो वे में बच्चों को एक्सप्लेन किया जाता है। तो अब मोनेटाइज नहीं हुआ है कोई बात नहीं, लेकिन हम अपना काम कर रहे हैं। और इस पॉलिसी में मुझे लगा कि मेरे जैसे क्रिएटर्स को ज़रूर फ़ायदा होने वाला है। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगी आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। और हमने शॉर्ट्स वीडियोस भी डाले हैं, बहुत सारे शॉर्ट, लेकिन शॉर्ट वीडियो में भी आप देखेंगे कि कोई भी वीडियो आपको कहीं से लिया हुआ नहीं है। हर वीडियो ऑथेंटिक वीडियो है, हमने खुद से बनाए हैं। एक भी वीडियो ऐसा नहीं मिलेगा आपको जो कहीं से लिया, किसी का कॉपी पेस्ट है, कुछ भी नहीं। ये सारे वीडियो मैंने अपने खुद से क्रिएट किए हैं और खुद से बनाए हैं। तो मतलब पूरा चैनल आप देखेंगे, एक भी वीडियो आपको ऐसा नहीं मिलेगा जो मेरे अलावा किसी और ने बनाया। तो ठीक है, हम लोग काम कर रहे हैं अपना। ये मैं बीच बीच में अपने बच्चों को शॉर्ट्स डालती हूँ जिसमें उन रीडिंग करके कोई चीज़ एक्सप्लेन करना हो, वो सब मैं करती रहती हूँ। मोस्टली मेरे चैनल पे जो लॉन्ग वीडियोस हैं वो हमेशा इंग्लिश में ही मिलेंगे आपको। ये देखिए, ये जो जितने भी लॉन्ग वीडियो हैं सारे इंग्लिश में, कोई भी वीडियो हिंदी में नहीं है। और क्योंकि इंग्लिश की प्रोफेसर हूँ तो मैं इंग्लिश में ही, जैसे ये वीडियो देख लीजिए आप, बहुत सारे बच्चों को अच्छा लगता है इसमें काफ़ी। ये देखिए जितने भी वीडियोस हैं हमारे, ये देखिए। तो इस सारा वीडियो आप देखेंगे किस तरह टेक्स्ट को पढ़ाया गया है, समझाया गया है। तो मैं चाहूँगी कि आप मुझे एक जेन्युइन ऑथेंटिक क्रिएटर होने के नाते इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स को बताइए कि कितने अच्छे स्टडी मटेरियल भी अवेलेबल है। और ये जो भी टेक्स्ट है, जो भी सिलेबस में होता है, उस मोस्टली वो सिलेबस में कवर करने की कोशिश करती हूँ। तो ये आप देखिए, ये सारे वीडियो हैं जिसमें मैं जैसे मैं एक चैप्टर ये टेक्स्ट एक्सप्लेन कर रही थी, तो उसमें देखिए टेक्स्ट में, और ये जो राइटर हैं ये इसी टेक्स्ट के राइटर है जेम कोइत्ज़ी। तो वो बच्चों को थोड़ा और अच्छा लगे, वो आइडेंटिफाई कर पाए। तो ये आप देख सकते हैं, इसमें इतना अच्छी तरीके से हमने इसको वीडियो को बनाया। और इसमें पूरा टोटल पूरे टेक्स्ट में मेरी आवाज़ होती है। आई मोस्टली स्पीक इन इंग्लिश इन माई वीडियोज़। So thank you so much. Kindly subscribe my channel. Thank you.